Good evening. So Good we'll evening. today we'll start with the conservative dentistry. Am I audible and visible, Rushi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. So have you gone through the topic? We'll cover conservative today and tomorrow. Then we'll start with the endo. Okay. Yes. बोलो, बोलो. ठीक ठीक है. Okay, I'll. So this is important. Okay, so we'll cover up and we'll do the discussion also. So history and rationale of conservative dentistry, and all they also ask. You divided the topics actually both separately. So we'll cover up history and rationale and pathological and non-pathological reasons, advanced knowledge of diagnosis and treatment planning, modern development in restorative materials and procedures. Hello. 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 Fine. Visible? Hmm. So Rushi will cover up today. Conservative dentistry, four topics will cover up today. Okay. So
Nowadays, conservative dentistry is replaced with a minimal invasive dentistry. Okay. Now we'll see the history and evaluation. Okay, evaluation of conservative dentistry. Early dental practices, tooth extraction was the only primary treatment for dental issues. Okay, use of rudimentary tools like crude instrument made of bone, ivory, and metals have come. So they started with the introduction of fillings. Amalgam and gold fillings have come. ठीक है, उसके बाद amalgam and gold fillings आए थे. Beginning of dental caries management through filling instead of extraction. Now then, डेवलपमेंट ऑफ पहले क्या था, यूजुअली अमेलगम और गोल्ड फिल किया जाता था. अमेलगम कैविटी के लिए क्या था, यूजुअली एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिया जाता था प्रॉपर. ठीक है, ताकि इसमें रेजिस्टेंस फीचर हो, रिटेंशन फीचर्स हो. ठीक है, अमेलगम एंड गोल्ड यूज करते थे. ठीक है, लेकिन उसके बाद जब डिस्कवरी हुई एचिंग की, ठीक है, एचिंग टेक्निक आ गई, तो फिर प्रिवेंटिव मेजर्स जो हो गए, तो मिनिमल प्रिपरेशन की, कंपोजिट रेजिन का एंड फ्लोराइड का यूज ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी amalgam is now banned in most of the countries. Now, minimal intervention era emphasis on preserving tooth structure while treating dental caries shift toward less invasive techniques. Key principle preservation of tooth structure. Only removal of the minimal tooth structure while addressing decay or damage. Focus on maintaining tooth integrity. पहले क्या होता था यूजुअली कि हम दांत की केरीज पूरी रिमूव करने की कोशिश करते थे, है ना. तो अब नाउ दिस डेंटल सर्जरी वी यूज टू से, अब नाउ डेंटल सर्जरी से डेंटल मेडिसिन की तरफ वी आर शिफ्टिंग. कि हम क्या कर रहे हैं अब, जो लीजन्स को वी आर रिमिनलाइजिंग देम. ओके, we are giving medicaments or mouthwashes you are using, we are using fluoride topical application, everything to remineralize the lesions, and so that we can preserve the tooth as much as possible. Minimal invasive dentistry, introduction of technique like air abrasion, laser dentistry to reduce the need for drills. है ना. तो अब इसमें क्या, इसमें मिनिमम इन्वेजिव डेंटिस्ट्री में क्या क्या आता है आपका, बहुत कुछ आता है. जैसे पहले तो मैकेनिकल यूज करते थे कि कॉम्पोजिट हो गया, पीआरआर हो गया टेक्निक्स. फिर उसके बाद केमिकल आ गया, केमिकल रिमूवल लाइक केरीजोल, केरीडेक्स. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लेजर आ गया, लेजर का यूज. ठीक है, एयर एब्रेशन आ गए. ठीक है, एंड ओजोन थेरेपी आ गए. दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन द मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक्स. Preventive overtreatment, preventive dentistry with regular checkups, oral hygiene education, and preventive treatment like fluoride and sealant. Biocompatible and early detection intervention to prevent extensive डैमेज टू टीथ. तो पहले क्या था कि जब कैविटी होगी तभी रिस्टोर करना है. अब क्या है कि नाउ वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स द अर्ली डिटेक्शन, कि कैविटी होने से पहले हम डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो आपके डायग्नोडेंट डिवाइस है, लेजर फ्लोरेसेंस डिवाइड है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, बहुत सारे डिवाइसेस आ गए जिनसे हम पहले ही डिटेक्ट करते हैं केरीज का. बायोकम्पैटिबिलिटी इन एस्थेटिक कंसिडरेशन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल दैट मैच द नेचुरल टूथ कलर, and biocompatible material that minimize allergic reaction and ensure long lasting results. Milestone in the history of conservative dentistry. इसमें आपको नेम जो याद रखना है, दैट इज द फादर ऑफ डेंटिस्ट्री. हु इज फादर ऑफ डेंटिस्ट्री? प्यारे फॉर्चर्ड. ठीक है, ही इज द नेम. तो ये नाम आपको याद रखना है. नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री, एडवोकेट फॉर फिलिंग टीथ विद लीड एंड टिन एलॉयज. ठीक है, तो पहले क्या था, लीड और टिन अलॉयज से हम दांत की फिलिंग करते थे. ठीक है, उसके बाद एमलगम आया. डेंटल प्रैक्टिसेस वर rudimentary with extraction being the most common. Early versions of filling were used to treat caries, but they were often crude and inefficient. Pierre Fauchet, known as the father of modern dentistry, advocate for filling teeth with lead and tin alloy. The introduction of dental drills by various practitioners during this period. The development of amalgam and gold as restorative materials. अब amalgam में क्या था, amalgam में हम basically क्या, amalgam is a alloy.
है ना। एलॉय क्या होता है, वन और टू और मोर, है ना, उनका मिक्सचर होता है जिसमें कि मरकरी के साथ उसे रिएक्ट किया जाता था। अब यूजुअली क्या यूज करते थे हम, सिल्वर अमलगम यूज करते थे, सिल्वर की स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, अमलगम के साथ। तो लेकिन उसका क्या वो है कि वो बेसिकली एक्सपेंड होती है, ठीक है, कि रेस्टोरेशन के बाद खाली अगर सिल्वर अमलगम यूज किया जाए तो इट देयर इज एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। तो उस एक्सपेंशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या ऐड किया उसमें, टिन यूज किया, ठीक है। टिन यूज किया तो टिन में क्या था, यूजुअली टिन क्या करता है, आपका एक्सपेंशन डिक्रीज करता है, डिले करता है, डिक्रीज करता है, और स्ट्रेंथ भी कम बढ़ा कर दे। देता है, कम कम कर देता है बेटा, ठीक है, अमलगम में ज्यादा रहता है, ये उसका काउंटर वो है। तो अब क्या हुआ कि जब वो ये कम कम करता है, तो अब जो आपने पढ़ा था गैमा, गैमा वन फेज, गैमा टू फेज, है ना, हम्म उसमें क्या था यूजुअली, जो सिल्वर जो रिएक्ट करता है और टिन, ये कुछ एक्स्ट्रा भी रह जाते हैं जो अनरिएक्टेड रह जाते हैं। तो हम्म जब सिल्वर मरकरी के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो दैट इज अ अ, एक था गामा, और एक में टिन रिएक्ट करता है, ठीक है, दोनों में, एक में सिल्वर अमल, जैसे इसमें जब सिल्वर और मरकरी और टिन हम जब रिएक्ट कराते हैं, तो यूजुअली जो एक्स्ट्रा जो रह गया अनरिएक्टेड हो गया, तो कई बार सिल्वर रिएक्ट करता है, कई बार टिन रिएक्ट करता है, तो इसको गैमा वन और गैमा टू फेज बोला गया था, हम्म ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो फेजेस थे, दे आर वीक फेजेस एक्चुअली, हम्म है ना। तो फिर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कॉपर ऐड किया गया था, है ना। एक बार गैमा वन, गैमा 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 वन, गैमा टू फेज एक बार आप देखना थोड़ा सा, अल चेक, है ना, गैमा फेज, गैमा वन एंड गैमा टू क्या होता है। फिर कॉपर ऐड किया गया था अमलगम के अंदर। तो कॉपर का एडवांटेज क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड बढ़ाता है। कॉपर कितना उसमें यूज करते हैं, 12% के अराउंड यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर आपका स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ाता है। चैट, हम्म गैमा, gamma 1 and gamma 2 phase in amalgam, ठीक है। और साथ में कॉपर भी यूज किया गया था और जिंक भी यूज किया गया था, है ना। तो ये यूजुअली जो मिक्सचर्स होते हैं सिल्वर अमलगम, इसमें बेसिकली सिल्वर रहता है, टिन रहता है, कॉपर रहता है और जिंक रहता जिंक। है, ठीक है। अब मैं टेल यू कि हाँ, तो ये जस्ट आई एम रीडिंग, गैमा फेज इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर टिन, ठीक है, जो खाली सिल्वर टिन रह जाते हैं, ठीक है, अनरिएक्टेड, ठीक है। द ओरिजिनल अलॉय फेज बिफोर रिएक्शन विद मरकरी, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट फेज, ठीक है, गैमा फेज। लेकिन गैमा वन फेज क्या होता है कि सिल्वर मरकरी के साथ रिएक्ट कर जाती है, बची हुई अगर, तो मेजर मैट्रिक्स फेज फॉर्म आफ्टर मरकरी रिएक्ट्स विद सिल्वर, स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली स्टेबल। एंड गैमा टू बोला इन्होंने, टिन वीक मरकरी फेस। के साथ रिएक्ट करता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ मरकरी रिएक्टिंग विद टिन, प्रॉपर्टीज है वीकेस्ट, प्रोन टू कोरोजन एंड रिड्यूसेस लॉन्जेविटी, ठीक है। हाई कॉपर, फिर उसमें हाई कॉपर अमलगम एडवांटेज क्या होता है, हाई कॉपर अमलगम, द गैमा टू फेज इज एलिमिनेटेड, कॉपर रिएक्ट विद टिन टू फॉर्म ए कॉपर टिन इंस्टेड विच इज मोर स्टेबल। तो गैमा फेज बना, ठीक है, अनरिएक्टेड, दैट इज ऑल्सो ओके। और कुछ मरकरी जो रह, सॉरी सिल्वर जो रह गया, ठीक है, उसने भी मरकरी के साथ रिएक्ट किया, दैट इज ए गैमा वन फेज। और लेकिन जो गैमा टू फेज बन जाता है ना, कि आपका टिन मरकरी के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, वो फेज क्या होता है, वीक होता है, और एंड इट इज प्रोन टू कोरोजन। तो उस चीज को रिड्यूस करने के उसमें क्या ऐड किया गया, कॉपर ऐड किया गया, ठीक है। एंड कॉपर टिन फेज इज मोर स्टेबल वन। एंड जिंक, फंक्शन ऑफ जिंक, जिंक का क्या फंक्शन होता है, ओके,
एक होता है जिंक और जिंक फ्री। अब जिंक की कितनी परसेंटेज थी, कॉपर कितना होता है ऋषि, 12%, पॉइंट है ना, और जिंक होते हैं 0.0 कुछ रहता है। हाँ, okay, I'll tell you about this thing. Now, function of zinc in amalgam. It acts as a deoxidizer. ठीक है, remove oxygen during the manufacturing of alloy powder, prevent oxidation of other metals like silver and tin, keeping the alloy pure and reactive. ठीक है, helps in producing a cleaner, more homogeneous alloy, contribute to better handling and carving properties of amalgam. If zinc containing amalgam is contaminated with moisture, it can cause delayed amalgam, delayed expansion. ठीक है, तो अगर जब हम अमलगम फिलिंग करते हैं और अगर कंटामिनेशन होती है हमारे सलाइवा की, तो उसके कारण डिलेड एक्सपेंशन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन गैस रिलीज, लीडिंग टू क्रैक्स और डिस्कम्फर्ट इन द रेस्टोरेशन. Hence, moisture control is critical when using a zinc containing amalgam. Zinc is not essential, but when included, usually less than 1%, it enhances the manufacturing quality and longevity of the amalgam, provided moisture is well controlled. Okay, यस मैम, गॉट इट क्लियर, है ना. यस तो मैम, इसमें क्या था हमारा अमलगम के अंदर, सिल्वर, मरकरी तो है ही, ठीक है, सिल्वर है, टिन टिन है है, एंड कॉपर कॉपर है, है और साथ जिंक में है। जिंक. हाँ, हाँ, कॉपर इज अराउंड 12%, ठीक है, एंड जिंक इज लेस देन 1%. जिंक बेसिकली डी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है. कॉपर का क्या फंक्शन था, कॉपर क्यों ऐड किया गया, जो गामा 2 फेज बन रहा था, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए किया गया. यस मैम, हम्म? यस मैम, द इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटल ड्रिल्स बाय वेरियस प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, लेकिन अमलगम का क्या है कि प्रॉपर ज्योमेट्रिक पैटर्न चाहिए होता है. ठीक है, ये नहीं कि हम सिर्फ खाली जहाँ पर केरीज है उतना ही रिमूव करें फिल कर दे, नहीं होगा, है ना, निकल जाता है ना. तो हमें प्रॉपर जो बकल एक्सटेंशन और आपका बकल लिंगुअल एक्सटेंशन, फिर आपका डफ टेल फीचर्स, ये सब देना पड़ता है ना रेस्टोरेशन में. तो अननेसेसरी टूथ का डिस्ट्रक्शन होता है. तो उसके बाद क्या आया, द फॉर्म 20th century में the introduction of composite resins and adhesive that allowed for aesthetic and functional restoration, the rise of preventive dentistry with the population of fluoride use and dental sealant. एक तो डिसएडवांटेज ये था कि मतलब इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक अमलगम का यूज, कि एक तो मरकरी का जो मरकरी होता है यूजुअली इट इज हैजार्डस. तो जो हमारा मरकरी जाता है वाटर लाइन में जाते हैं, उधर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट में जाता है एंड इट इज टॉक्सिक, है ना. तो इसलिए कई कंट्रीज में इसको बैन किया गया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ देखा जाए तो काफी अच्छी होती है. ठीक है, लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट रेजिन्स एंड एडेसिव सो एस्थेटिक, तो अब उनका जो है यूज करने का वो ज्यादा बढ़ गया. प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री आ गया, फ्लोराइड यूज आ गया, ओजोन एप्लीकेशंस आ गए, लेजर आ गए. तो ठीक है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री. ओके, नाउ modern conservative procedures, advances in materials like introduction of high strength ceramic, porcelain, resin, composite, use of bioactive and biocompatible material for restorative purposes. अब bioactive materials भी आगे से बायोग्लास हो गया, ठीक है, बायोडेंटिन हो गए, ये सब एडवांस मटेरियल्स है. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, डिजिटल इंप्रेशन, अब पता ही आजकल डिजिटल इंप्रेशन शुरू हो गए सभी जगह क्लिनिक्स में. ठीक है, क्राउन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइन है, वो कैड कैम के थ्रू हो रहा है आजकल. एंड 3D प्रिंटिंग से क्या बहुत जल्दी क्राउन बन जाता है. तो सेम डे आप पेशेंट को रूट कैनाल के बाद अब क्राउन भी हम दे सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम उसे काफी हम वैसे अपॉइंटमेंट दे 2 डेज 3 डेज के बाद का वो चीजें खत्म हो जाएंगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की. आपने डिजिटल इंप्रेशन लिया, तुरंत लैब के पास चला जाएगा. ठीक है, कैड कैम से तुरंत वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा. ठीक है, एंड 3D कैड कैम से डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग, तो उसके थ्रू आपका तुरंत थोड़ी देर में वन मतलब हार्डली विद इन 1 आवर आपका क्राउन रेडी हो जाएगा. ठीक है, लेजर डेंटिस्ट्री फॉर प्रिसाइज कैविटी प्रिपरेशन. ठीक है, लेजर टेक्निक्स आ गए हैं जो कि आपका कैविटी को रिमूव करते हैं और स्टरलाइज करते हैं. एंड बेसिकली एंडोडोंटिक एंड पेरिडोंटल इंटरवेंशन, रूट कैनाल थेरेपी इज अ मेथड फॉर प्रिजर्विंग टूथ इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्शन. पेरिडोंटल ट्रीटमेंट एट एम्ड एट
preserving the natural dentition. Patient-centered approach is there. Emphasis on patient comfort, understanding, and consent. Incorporation of patient preference in treatment planning. Now, rationale behind conservative dentistry: tooth preservation, restoration of function, long-term aesthetic result, cost effectiveness, reduce risk of complications. ठीक है. Now we'll come to questions also. जल्दी से हम questions cover करेंगे. Okay. Who is considered the father of modern dentistry? Yuri Pierre Fawcett. Faucher. ठीक है, ये नेम आप याद रखना. Which of the following was a significant milestone in the history of conservative dentistry in the 19th century? Development of amalgam. अमलगम एज अ रिस्टोरेटिव मटेरियल. ठीक है. 20th सेंचुरी में हमारा कॉम्पोजिट रेजिन्स पर आ गए. ठीक है. इन द अर्ली डेज ऑफ डेंटिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर डैमेज टीथ? Extraction. अब फिलिंग विद Extraction, ma'am. sorry, extraction. Okay. Extraction is the option. Okay. Which principle of conservative dentistry emphasize the removal of the least amount of healthy tooth structure? Preservation of the tooth structure. Yes, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ना इसको. अब ठीक है. Yes, ma'am. Okay, fine. The shift from tooth extraction to restorative treatment in conservative dentistry is primarily due to advancement in. Materials, restorative materials. Okay. C D. Sorry. Okay. Which dental material was introduced in the 19th century as a common restorative material for filling? Amalgam. The modern concept of minimally invasive dentistry aims to use. Preservation as much as natural tooth structure is possible. Okay, fine. Which early dental pioneer is credited with introducing the use of gold foil for restoration in the 19th century? GV जीवी Black. ब्लैक नहीं. हाँ, Yes, ma'am. GV Black. जीवी Also. ब्लैक. ठीक है. जीवी ब्लैक नहीं, आपका गोल्ड फॉइल का भी दिया था. ठीक है. मलगम भी इसने दिया था. तो जैसे अमलगम फीलिंग होती है वैसे इसको भी करते हैं. विच इज द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री इन इट्स अर्ली हिस्ट्री? Prevention of early tooth extraction. प्रिवेंट टूथ एक्सट्रैक्शन, पेन मैनेजमेंट, रिस्टोरिंग टीथ विद मिनिमल इन्वेसिव टूथ एक्सट्रैक्शन बेसिकली. ठीक है. Yes, ma'am. है ना. टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं होने देना. In the 20th century, what material was introduced to provide a more aesthetic and biocompatible filling option? Composite. Yes, composite resins. Which of the following is not a guiding principle of modern conservative dentistry? Aggressive tissue removal. Yes. In the history of conservative dentistry, which metal was predominantly used for filling before the widespread use of amalgam? Gold. Yes. Which of the following principle is central to modern West conservative dentistry in terms of patient care? Which are the Modern following? conservative. Yes. Speed and efficacy of treatment, focus on cosmetic result, preservation of natural tooth structure and function. Preservation. ठीक है. Natural C tooth. option. What is the primary goal of modern restorative dentistry in relation to tooth loss? अभी हमारा गोल क्या रहता है मॉडर्न उसका? Minimum. Minimal, yes. To restore truth with while preserving as much of the natural structure as possible. Which dental process significantly contribute to the move from tooth extraction to tooth preservation in conservative dentistry? Root canal therapy. Okay, yes. Which dental development in the 20th century helped reduce the need for tooth extraction and increase the focus on tooth preservation? Fluoride treatment. Introduction of fluoride Yes. treatment. What is the significance of minimal intervention in conservative dentistry? It reduces treatment cost. Focus on It the early focuses on early diagnosis. diagnosis and minimal damage to healthy tooth tissue. ठीक है. जो अर्ली डायग्नोसिस है ना, अर्ली डायग्नोसिस जिसमें हम लेजर यूज करते हैं यूजुअली, है ना, लेजर फ्लोरोसेंट डायग्नोडेंट, ये सब भी एमआईडी में आते हैं, मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री में आता है ना. Yes, ma'am. Which of the following was introduced as part of the preventive approach in modern conservative dentistry? Early detection, remineralization of caries. ठीक है. Hmm. What is the primary advantage of biocompatible material in modern conservative dentistry? In modern conservative dentistry, it's a Increase aesthetic outcome.
Hmm. Increase aesthetic outcome and patient comfort. Which dental tool innovation greatly impacted development of conservative procedures? Dental drill, laser technology, root canal instrument, X-ray लेजर machines. टेक्नोलॉजी. Which dental tool innovation greatly impact the development of conservative procedures? Dental लेजर drill. टेक्नोलॉजी. Which dental tool innovation greatly impacted the development of conservative dentistry? Dental drills. Yes. The shift from traditional amalgam filling, ठीक है, to composite resins was largely due to, क्यों हुआ? एस्थेटिक बेटर प्रॉपर्टीज. एस्थेटिक बायोकम्पैटिबल प्रॉपर्टीज, ठीक है. कंपोजिट हम क्यों यूज करते हैं, सभी लोग कंपोजिट क्यों करवाते हैं, बेसिक एक तो एस्थेटिक है और दूसरा इट इज अ बायोकम्पैटिबल वन, है यस ना. मैम. What was a key advancement in conservative dentistry during the 20th century? The use of फ्लोराइड एंड fluoride and prevention. Which aspect of conservative dentistry is most focused on patient comfort and psychological well-being during treatment? Minimal invasive मिनिमल. dentistry and communication. Sorry. What is the ultimate goal of conservative dentistry? To restore the tooth to its original form and function while preserving the remaining tooth structure. ठीक है. तो यहाँ पर जो नेम था, क्या नाम था मॉडर्न डेंटिस्ट्री के, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री? पियरी फॉर्चर्ड. यस, ये रिमेंबर रखना है, ठीक है. पैथोलॉजिकल नॉन एंड नॉन पैथोलॉजिकल रीजन पार्ट टिश्यू ऑफ टीथ, ठीक है. पैथोलॉजिकल एंड नॉन पैथोलॉजिकल. ओके, so we start with the pathological. Pathological is a dental caries is one of the most prevalent. Pathological मतलब उसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है. Dental caries is one of the most prevalent pathological conditions affecting the hard tissue of teeth. It is a progressive disease that lead to the destruction of tooth structure due to demineralization of enamel and dentine. ठीक है. Etiology: caries is caused by interaction between dental plaque bacteria, especially Streptococcus mutans and fermentable carbohydrates. Okay. अब मुझे बताओ रुचि, इनिशिएशन ऑफ डेंटल कैरीज के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस. ओके. एंड डीप डेंटाइनल कैरीज में कौन सा मिलता है हमें? उसमें मैम लैक्टोबैसिलस मिलता है. रूट कैरीज में? रूट केरीज में एवी इज एक्टिनोमाइसिस विरिडेंस. वो एक्ट्रोमाइसिस विस्कोसस. विरिडन है शायद. एवी विस्कोसस है बेटा, हाँ, अच्छा. है ना. ओके. विस्कोसस है, ठीक है, रूट कैरीज में, ठीक है. ओके. ओके. Risk factors: poor oral hygiene, high carbohydrate diet, low salivary flow, genetics, age, and systemic health conditions. Okay. Now, clinical presentation, कि spots enamel progressing to brown. अगर caries आपकी enamel में है, ठीक है, it can be remineralized. Remember always, when it enters a dentine, then you need to restore it. Okay. This classification, Pitts and Fisher interproximal areas of posterior teeth, ये classification किसने दिया था? नहीं पता मैम. हाँ. ये वाला इंटरप्रॉक्सिमल एरिया ऑफ एरिया एंटीरियर. हाँ, जीवी क्लास वन ब्लैक. पिट एंड फिशर्स. ओके. मैम जीवी ब्लैक क्लास टू. क्लासिफिकेशन. हाँ, विच वन? जीवी ब्लैक का ये क्या ये मैम? यस. हाँ, ये जीवी ब्लैक का है. इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज ऑफ पोस्टीरियर जो हम मोस्टली यूज करते हैं अपने क्लिनिक्स में, ठीक है. क्लास थ्री इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज ऑफ एंटीरियर टीथ विदाउट इंक्लूडिंग द incisal इंसाइजर. edges. Class 4 is interproximal areas of anterior teeth with incisal edge involvement. Class 5 is gingival third of the facial and lingual surfaces. And class 6 is cusp tips or, or incisal edges. ठीक है. ये दिस आर मोस्ट कॉमनली यूज. और दूसरा क्लासिफिकेशन एक और था ना, वो किसने दिया था? ह्यूम्स क्लासिफिकेशन. दैट इज ऑन द, दैट इज साइट एंड साइज, ठीक है. ह्यूम्स क्लासिफिकेशन जो कि साइट एंड साइज पर था. साइट कौन कौन से थे उसमें? पिटन फिशर हो गया. और कौन सा था? मैम वो नहीं पड़ा हुआ मेरा. अच्छा. ओके ओके, ठीक है ना. पिटन फिशर था, सर्वाइकल रीजन था, एंड आई टेल यू अबाउट. और साइज रहता है उसमें. आई टेल यू क्लासिफिकेशन, ह्यूम्स क्लासिफिकेशन.
साइज यूजुअली क्वेरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? एक कॉन्टैक्ट एरिया में होती है बेटा, ठीक है, और दूसरा कहाँ होता है? पिट एंड फिशर में होता है, तीसरा सर्वाइकल एरिया में होता है। जो पिट एंड फिशर एरिया दैट इज अ साइट 1, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया इज साइट 2, एंड जो सर्वाइकल एरियाज होते हैं वो दैट इज अ Right. जिंजेबल कट साइट 3, ठीक है। Yes, ma'am. इसको बोलते हैं माउंटेन ह्यूम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जीवी ब्लैक का था जो सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज माउंटेन ह्यूम्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट एंड साइज, ठीक है। इसमें कितने साइजेस थे? साइज 0 to 4, ठीक है। साइज 0 इज नो कैविटी, ठीक है, ओनली डिमिनरलाइजेशन, तो वहां पर रिमिनरलाइज। साइज 1 इज मिनिमल कैविटी दैट इज लिमिटेड टू द इनामल, ठीक Okay. है, मतलब उसमें कैविटी नहीं हुई है साइज 0 में, सिर्फ मिनरल लॉस हुआ है। साइज 1 में कैविटी हो गया एंड इट इज जस्ट इन्वॉल्विंग द इनामल। साइज 2 मॉडरेट कैविटी डेंटिन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। साइज 3 लार्ज कैविटी विद सिग्निफिकेंट डेंटिन लॉस, एंड साइज 4 Pulpal एक्सटेंसिव heat. कैविटी इन्वॉल्विंग cusp और incisal edges। Okay. आई थिंक पल्प था ये कुछ, तो एक्सटेंसिव कैविटी इन्वॉल्विंग a curious lesion on the occlusal pit with, अब इसको क्या कहते हैं 1 2, जब लिखते हैं ना तो उसका साइड पॉइंट करके हम डालते हैं। सपोज करो पिट एंड फिशर के यहाँ पर केरीज है, ठीक है, एंड से मिनिमल कैविटी लाइक लिमिटेड टू इनामल, तो हम लिखेंगे 1.1, ठीक है। Okay. अगर प्रॉक्सिमल सरफेस के यहाँ पर है तो 2.1, सर्वाइकल के यहाँ पर 3.1, इस तरीके से लिखते हैं इसको ना, माउंटेन ह्यूम्स क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। ये साइट एंड साइज के ऊपर दिया गया था इसको, ठीक है। Yes, ma'am. ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, फ्लोराइड एप्लीकेशन हो गया, सिलेंट हो गया, रिस्टोरेटिव फिलिंग्स हो गई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया फॉर सीवियर केरीज, ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव, हमने पढ़ा था ना, पिट एंड फिशर सिलेंट और पीआरआर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिट एंड फिशर सिलेंट एंड पीआरआर? प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन। मैम प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन एट्रोमेटिक रेस्टोरेशन होता है। ओके, नहीं आई टेल यू, एआरटीज अलग डिफरेंट है। देखो, पिट एंड फिशर सीलेंट जो होता है बेसिकली नॉन केरियस पिट्स एंड फिशर्स में हम देते हैं, ठीक है, Yes, स्पेसिफिक ma'am. प्रोटेक्शन। ये केरीज नहीं हुए लेकिन शार्प पिट है, डीप पिट्स है, केरीज हो सकता है, तो वी सील इट विद पिट एंड फिशर फ्लोएबल कंपोजिट से हम उसको सील कर देते हैं जेआईसी से, ठीक है। Okay. एंड पीआरआर कहाँ पर होता है कि अब क्या वहां पर हल्का इनामल केरीज हो गया, दैट इज एक्सटेंडिंग टू द इनामल ओनली, ठीक है। इसमें जो बर होता है सेम हम बर, इसमें हम बर यूज करते हैं, ठीक है। Okay. सेलेंट पिट एंड फिशर में जरूरत नहीं होती बर की, इसमें बर यूज करते हैं, मतलब आप उसको वाइड करोगे पहले तो, Okay. ठीक है। उसमें हम पहले जो फ्लोएबल कॉम्पोजिट रेजिन्स आते हैं वो हम डालते हैं, ठीक है, क्योर करके, फिर ऊपर से पिट एंड फिशर सीलेंट से उसको सील कर दिया जाता है प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशंस में, Okay. ठीक है। रेस्टोरेटिव फिलिंग्स हो गया। रेस्टोरेटिव फिलिंग्स आपको कौन कौन से पता है? ओके, मैम इसमें आते जीआईसी। हैं, हाँ, एक तो हमें क्लास 1 कैविटी पता ही है, ठीक है। क्लास 2 कैविटी की व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास 2 कैविटीज? एमओडी। ओके, प्रॉक्सिमल हो गया वो तो कन्वेंशनल। उसके अलावा एक होता है टनल प्रिपरेशन, ठीक है, और यस दूसरा मैम। होता है स्लॉट प्रिपरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लॉट प्रिपरेशन और टनल प्रिपरेशन? टनल हम कब करते हैं कि आपको कांटेक्ट एरिया पर केरीज मतलब है, ठीक है, ठीक है, वहां पर, और आपकी मार्जिन रेंज इंटैक्ट है प्रॉपर, ठीक है, तो आप मार्जिन रेंज से 2 mm दूर, ठीक है, आप एक्सेस लोगे, ठीक है, और उसको कनेक्ट करते हो नीचे केरी से, मतलब आप मार्जिन रेंज को इंटैक्ट करके रखते हो, टनल बनाते हो, और फिर वहां पर आप मैट्रिक्स बैंड लगा के एक वेज लगाकर ऊपर से फिलिंग करते हैं उसमें। और ओके। यूजुअली फिलिंग कौन सा यूज करते हैं आप? जीआईसी यूज करते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि रीमिनरलाइजेशन एक्शन होता है, प्रॉपर सील होता है। और जो दूसरा स्लॉट प्रिपरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो केरीज होती है ना बेटा, वो क्या होता है, इट इज जस्ट beneath the marginal ridge and 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 above the contact area,
तो हम कॉन्टेक्ट एरिया ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम बस उतना से प्रिपरेशन करते हैं, स्लॉट बनाते हैं, मतलब हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम डॉवटेल नहीं बनाएंगे, हम उससे आगे ऑक्लूजल वो नहीं देंगे, ठीक है। ऑक्लूजल एक्सटेंशन बना नहीं देते, बस एक स्लॉट प्रिपरेशन जैसा करके उसको फिलिंग कर देते हैं, मिनिमल फिलिंग होती है। ओके मैम, इसमें भी जीआईसी यूज करते हैं स्लॉट प्रिपरेशन में भी? यस यस, जीआईसी यूज करते हैं, है ओके ना। जो किटैक मोलर आते हैं ना, हाई स्ट्रेंथ जीआईसी, वो मतलब हम बेसिकली वहां पर हम प्रिजर्व करने की कोशिश करें टूथ स्ट्रक्चर्स को। ओके। ओके, हाँ, ये तो हमारा ओके। एंड टेल मी द पीएच, इनामल कीरीज के लिए कितना पीएच होना चाहिए? मैम 5.5 वो तो एंड दे। डेंटिन के लिए डेंटिन के लिए नहीं पता मैम। 6.5, रिमेंबर, ओके। ठीक है। यस मैम। Okay, dental fractures we know come. Okay, fractures is also pathological one. Fractures of teeth can occur due to trauma, usually as a result of accident, falls, or impact. Fracture can classify based on the severity and location of the damage. Enamel fracture, enamel dentine fracture. Okay, and pulp involvement, etiology trauma, biting on hard objects, sports injury, management, conservative treatment for minor fractures, and root canal therapy and crown for fracture with pulp involvement. ठीक है। डेवलपमेंटल एनामलीज लाइक अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, एंड डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा where the enamel's ability to form properly result in soft, discolored, and easily worn down teeth. Dentinogenesis imperfecta, this is a genetic condition that result in defective dentin formation, leading to translucent teeth that are prone to fracture. Management, crown and endodontic treatment. Okay, other development anomalies इन्होंने बोला इनमें भी। और नॉन पैथोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं? दैट इज द वेयर ऑफ द टूथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट एक्सेसिव वेयर मे लीड टू फंक्शन एंड एस्थेटिक इश्यूज, ठीक है। एट्रिशन हो गया, दिस रेफर्स टू द वेयरिंग अवे ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ड्यू टू टूथ contact, often seen in individuals who grind their teeth, bruxism. And abrasion, abrasion यूजुअली किससे होता है? टूथ ब्रशिंग, ठीक है ना। External factors like aggressive toothbrushing or using abrasive toothpaste. Erosion is basically due to chemical केमिकल। process. This is a consumption of acidic food and beverages. And what is abfraction? क्या होता है abfraction? मैम लोड की वजह से जो होता है, क्या लोड की वजह से? मतलब प्रॉपर लोड नहीं है अगर दांत पर, अननेसेसरीली लोड आ रहा है, एक्सेस अमाउंट में लोड आ रहा है। नहीं नहीं, एक्सेसिव अमाउंट में लोड आ रहा है मतलब क्या? वो तो ट्रॉमा फ्रॉम वो हो गया ना। हाँ, व्हाट इज abfraction? हम्म, मैम एब्फ्रैक्शन यही है कि मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब लोड किसी पर्टिकुलर टूथ पे अगर ज्यादा आ रहा है तो अब फ्रैक्शन हो जाएगा उस पर। No, no. Do I tell you about this thing? है ना? Now listen carefully. Abfraction is a type of non-carious cervical tooth surface loss caused by biomechanical forces, not decay or abrasion. अब biomechanical forces के abfraction is a pathological loss of tooth structure. Abfraction, ठीक है, is a pathological loss, ठीक है, of tooth structure, typically at the cervical areas of the tooth due to flexural forces during occlusion or bruxism. Repeated tooth flexing under heavy occlusal forces, stress concentration at the cervical area, often associated with bruxism, clenching, or malocclusion. Appearance, wedge-shaped defect at the cervical margin, sharp margin often deeper than the abrasion lesion. Sharp margin often deeper than the abrasion lesion, usually found on the buccal surface of premolars and canines. एंड इसके फीचर्स इन्होंने बोला है, जो एफ्रैक्शन होता है ऑक्लूजल स्ट्रेस रहता है, ठीक है, वेज शेप्ड एरिया शार्प एंड एब्रेजन, बेसिकली ब्रशिंग हैबिट राउंडेड स्मूदर रहते हैं, जो एब्रेजन होते हैं राउंडेड एंड स्मूदर रहेंगे, ठीक है। यस एंड मैम। इरोजन इज केमिकल एंड ब्रॉड शेलो, ठीक है। एक तो जो एफ्रैक्शन है इट इज ए पैथोलॉजिकल वन, ठीक है। दूसरा इट इज अ वेज शेप्ड एंड शार्प ऑक्लूजल स्ट्रेस के कारण, एंड एब्रेजन इज ब्रशिंग हैबिट राउंडेड स्मूदर,
ठीक है। मैनेजमेंट ऑक्लूजल एडजस्टमेंट और नाइट गार्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लीजन इफ सेंसिटिविटी और एस्थेटिक कंसर्न, एड्रेस अंडरलाइन ऑक्लूजल फोर्सेस। ठीक है ना, दैट इज अ फ्रैक्शन। ओके फाइन। हाँ, आई डोंट नो, यहाँ पे देखो कहाँ पर पड़ा है, हटा के देख लो, कपड़ा हटा के देखो बेटा, वहां पर कहीं देखो, उधर कहीं मैंने देखा था चार्जर रखा हो कहीं पर, देखो बेटा। डेवलपमेंट डिफेक्ट्स, इनामल हाइपोप्लेजिया, डेंटल फ्लोरोसिस। ठीक है, this is a condition where there is a lack of enamel formation, often caused by systemic factors such as nutrient deficiency or childhood illness. Dental fluorosis, mottling or discoloration of the enamel, management bleaching, microabrasion of veneers. Tooth discoloration, whitening treatment, restorative solutions like crown. Other non-pathologic occlusal tooth wear, supernumerary management. Okay, now we come to this. Okay, we'll cover up the MCQs. Okay, इसके जल्दी से. Which of the following is the primary etiological factor for dental caries? Bacteria, saliva, tooth anatomy, age. Bacteria. ठीक है, अगर सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल मेनली इटियोलॉजी, प्राइमरी बैक्टीरिया। इटियोलॉजिकली बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया। इट्स बैक्टीरियल डिजीज। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेंटल फ्रैक्चर्स? ट्रॉमा। Trauma. Which bacterial species most commonly associated with the development of dental caries? Mutants. और म्यूटेंट्स। What is the primary symptom of enamel caries in the early stage? White वाइट spot. स्पॉट। Okay. And how will you differentiate between the white spot due to dental caries and white spot due to enamel hypoplasia? कैसे करोगे डिफरेंस? इनेमल केरीज में और हाइपोप्लेजिया। हाँ, मैम एक तो अगर लोकेशन, इनेमल हाइपोप्लेजिया होगा तो वो नंबर ऑफ टीथ ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो सपोज करो अगर उसको इनिशियली नर्सिंग बॉटल केरियर कुछ हम देख रहे हैं तो पहले बच्चों के सारे दांत सामने के वाइट वाइट हो जाते हैं ना। तो अब ओके। इनका लोकेशन, फर्स्ट इज अ लोकेशन। ठीक है, जो ओके। केरीज होती है सर्वाइकल रीजन में होती हैं। ठीक है, और जो व्हाइट स्पॉट होते हैं ये कहाँ पर होते हैं बेटा? लेबियल सरफेस पे जनरली ईबीएस में मिड रीजन और इंसाइजल रीजन में। ठीक है, वन दिस थिंग। और दूसरा कि आप जैसे सलाइवा से इसको गीला करते हो है ना, व्हाइट स्पॉट को और डेंटल केरीज को, तो कौन सा विजिबल रहेगा कौन सा नहीं विजिबल होगा? मैम जो यूजुअली जो डेंटल केरीज होती है ना उसको देखने के लिए हमें एयर ड्राइंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपने उस पर पानी या ऐसे सलाइवा से गीला हो गया तो दिखता नहीं है व्हाइट स्पॉट। ठीक है, ड्यू टू डेंटल केरीज वाला। ठीक है, आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा तब वो व्हाइट स्पॉट दिखेगा। लेकिन जो व्हाइट स्पॉट इनामल हाइपोप्लेजिया के कारण है उसमें आपको ड्राइंग नहीं चाहिए, मतलब वो ऐसे विजिबल रहते हैं। गॉट ओके। इट? यस मैम। है ना। और दूसरा वो मतलब आपके मतलब जो इंसाइजर्स है, इंसाइजर्स में कहाँ होंगे वो? बेसिकली मिडल एरिया में हो गया, इंसाइजल एरिया में हो गया, सर्वाइकल रीजन में नहीं होते। ओके। है ना। हाइपोप्लेजिया जो होता है ना पहले इनामल से शुरू होता है, इंसाइजल एज से शुरू होता है बनना। ओके मैम। है ना, सर्वाइकल एरिया में नहीं मिलेगा आपके। लेकिन डेंटल केरीज कहाँ मिलेंगे? सर्वाइकल एरियाज में मिलेंगे, जहाँ पर प्लाक इकट्ठा हो सकता है, रिटेन हो सकता है। यस मैम। Okay, which of the following is the most appropriate treatment for an uncompleted enamel fracture? Uncompleted enamel fracture है, ठीक है, बॉन्डिंग uncompleted है रीजन। तो bonding or resin restoration. In which type of dental fractures pulp involvement most likely to occur? Enamel dentin fracture, root fracture. इनेमल डेंटिन फ्रैक्चर। Okay. Which development anomaly result in defective enamel formation? Of defective अमीलोजेनेसिस enamel इम्परफेक्ट। formation, amelogenesis imperfecta. Which of the following is the most common form of tooth discoloration? Extrinsic एक्सट्रीम। strain, intrinsic strain or fluorescent tetracycline, mainly extrinsic staining। extrinsic staining के केस हमारे पास ज्यादा आते कि नहीं आते क्लिनिक्स में? यस फुटका मैम। वाले ये सब आते हैं। तो कितने केसेस आते होंगे? हार्डली। एमिलोजेंस इम्परफेक्टा का, डेंटिनोजेंस इम्परफेक्टा हार्डली आपने 4-5 केसेस देखे होंगे अभी तक पूरी लाइफ में। यस मैम। है ना, फ्लोरोसिस के भी बहुत कम। इधर या तो आप उस एरिया में रह रहे हो तब आपको फ्लोरोसिस के केसेस मिलेंगे, या कभी कोई पेशेंट दूर से आ जाए तब, है ना, अदरवाइज नहीं मिलते हैं।
Which dental anomaly is characterized by the presence of extra teeth in the arch? Hyperdontia. ठीक है? Yes, Okay. ma'am. Which of the following conditions commonly associated with dentition imperfecta? Translucent teeth. ठीक है, क्योंकि उनका इनामल तो निकल जाता है, डेंटिन रह जाती है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस देता है उसको, ठीक है, टूथ को. Okay. What type of wear is caused by tooth to tooth contact and is Adhesion. commonly seen in patients who grind their teeth? Adhesion. Attrition. Which of the following is a common cause of abrasion of the teeth? Faulty brushing. Yes. What is the term for the chemical wear of teeth caused by acid from food or drinks? Erosion. Erosion. Which of the following is the most commonly cause of non-pathological wear of the teeth in children? Trauma. Thumb sucking. High sugar diet. Most common cause of non-pathological, that is a bruxism, na? बच्चों में thumbs क्या? Which of the following is the most common cause of non-pathological wear of the teeth in children? High sugar diet, trauma, thumb sucking, acid reflux. Thumb sucking. Okay. हम thumb sucking से कैसे? हाँ, thumb sucking से मतलब ये बेसिकली प्रेशर दे रहा है, प्रेशर से दांत का वो हो गया. जस्ट चेक, जस्ट मिनट. हाई शुगर डाइट, ट्रॉमा, एसिड रिफ्लक्स. एसिड रिफ्लक्स भी नहीं होता. एक मिनट, जस्ट चेक. एसिड रिफ्लक्स बच्चों में नहीं देखते हैं ना. ट्रॉमा के कारण वियर नहीं होता एक्चुअली, नॉन पैथोलॉजिकल वियर जहाँ बैक्टीरिया ना इन्वॉल्व. एंड हाई शुगर डाइट इज ऑल्सो बैक्टीरियल दिस थिंग. आई सी थंब सकिंग से दांत वियर हो जाते हैं. ओके, दे हैव गिवन एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने. थंब सकिंग इज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग हैबिट कॉमन इन चिल्ड्रन स्पेशली अंडर 5. It can lead to wear of teeth, especially maxillary incisors, and proclination of upper teeth also, open bite, caused bite, or speech issue. It is considered non-pathological because its behavior and not due to infection or disease. And other option like high sugar diet leads to caries or not wear. Trauma, pathological acid reflux cause erosion but not common in children as thumb sucking. So thumb sucking is the most frequent cause of non-pathological wear in kids. इन्होंने आंसर ये दिया हुआ इसका, ठीक है, Okay, कि ma'am. धीरे धीरे उसका इनामल भी जाता है. आई नो दैट. ओके, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? Hmm, 15. Which conditions caused by excessive fluoride ingestion during enamel formation? Fluorosis. Fluorosis. What is the term for the loss of tooth structure due to mechanical forces other than the chewing? Abfraction. हम abrasion लिखा है क्या? एक मिनट रुको. हाँ, what is the term for the loss of tooth structure due to mechanical forces? Okay, mechanical other than the chewing. Abrasion बेटा. Abrasion है ना, attrition, abrasion, erosion, cavity formation, abrasion, Yes, है ma'am. ना. In which condition does a tooth surface appear rough, chalky, and porous due to excessive fluoride ingestion? Fluorosis, semilofluorosis. Which development defect causes hypodensia of enamel? Enamel Hypoplasia. hypoplasia. Which condition is most likely to lead to an abnormal tooth eruption pattern due to an excess of teeth? Supernumerary. Supernumerary teeth. Which non-pathologic condition primarily caused by the loss of tooth structure due to acid exposure from the stomach? Erosion. Erosion. What is common cause of tooth wear in aging or adults? Attrition due to grinding. What is the most effective preventive measure for non-pathological dental wear caused by dietary acids? डाइट्री एसिड से अगर इरोजन हो रहा था हम क्या करेंगे? Dietary modification reduce the acid intake. And reduce acid intake. Okay. Which type of tooth wear is common in patients with excessive acidic flow or drink consumption? Erosion. Erosion.
Which of condition is most likely to be associated with the congenital lack of enamel formation? Amelogenesis Nilogen. imperfecta is most common associated with development of defect in the hard tissue of teeth. Systemic illness during childhood. इसका ऑप्शन लिखा था. Okay, development defect in the hard tissue of teeth. Development system illness, trauma to malnutrition, inherited genetic conditions. Okay. Which of the following is a clinical feature of dental fluorosis? People with bruxism. Brownsville. Nutrition. Which type of dental Okay. fracture involves only the outer layer of enamel? Enamel fracture. What is the term for the excessive formation of enamel leading to thickened enamel layer? किसमें होता है ज्यादा थिक हो जाता है enamel? Enamel Enamel hypoplasia. hyperplasia. Which development anomaly is caused by disturbance during tooth development resulting malformed teeth? Malformed teeth किसमें होता है? Supernumerary teeth? Yes, ma'am. क्या amylogenesis imperfecta the answer कुछ इसमें? Okay. Which development anomaly is caused by disturbance during tooth development? Okay, tooth development में है ना? तो initiation phase उसमें नहीं है. During tooth development resulting malformed teeth. इससे amylogenesis imperfecta. ये नहीं समझ में आया मुझे, इसका आंसर ये है क्यों ना? दिया? And अगर so अगर initiation just a minute. We'll come back. देखो इसमें इन्होंने कहा है कि एमरेज इम्परफेक्टा इज ए ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी कंडीशन दैट अफेक्ट द एनामल फॉर्मेशन ऑफ टूथ इट रिजल्ट इन मालफॉर्म एनामल थिन सॉफ्ट पिटेड और discolored increase wear or rapid attrition sensitivity due to exposed dentin it can affect both primary and permanent dentition other option जो दिया dentinal imperfecta affect dentin not enamel hypodontia increased number of teeth not malformed hypodontia and supernumerary teeth extra teeth not necessary malformed ठीक है तो इन्होंने कहा जो सुपरन्यूमरी टीथ होते हैं एक्स्ट्रा टीथ होते हैं लेकिन नॉट नेसेसरी मालफॉर्म्ड हो वो सो अमिलोजेनेसिस परफेक्टा इज अ करेक्ट आंसर एज इट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स एनामल डेवलपमेंट डिस्टर्बेंस रुचि Yes, ma'am. गॉट इट Yes, ma'am. ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं देखने में इजी से लगते हैं लेकिन गलत हो सकते हैं. यस नाउ एडवांस नॉलेज ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग ये ना फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे हैं मतलब जस्ट वो है तो वी आर जस्ट कवरिंग अप है ना उनको इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं लास्ट के 2 चैप्टर्स फिर भी थोड़े अच्छे हैं Okay, which of the following is the first step in the diagnostic process of dental treatment planning? Clinical examination, comprehensive patient evaluation, radiographs, and differential diagnosis. Comprehensive patient evaluation, ठीक है? Okay. What is the main advantage of CBCT in the diagnostic process? CBCT का main advantage क्या है? It's a two-dimensional images. No, it's a X-ray होता है. Allow detailed imaging of bone structures and soft tissues.
ठीक है, Yes, ठीक है, बी ऑप्शन। yes, ma'am. Which diagnostic tool is primarily used for assessing the health of tooth pulp? Radiograph, pulp vitality test, 3D imaging, and palpation test, pulp vitality test. Faculty. In the Yes, treatment planning process, which phase focuses on pain management and infection control? ट्रीटमेंट प्लानिंग में कौन से फेज में हम इन्फेक्ट पेन मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? इमरजेंसी फेज है ना, फर्स्ट फेज में ही हम करते हैं ना, क्या दिया yes, है? ma'am. फेज वन इमरजेंसी फेज एंड पेन रिलीफ, ठीक है। सेकंड फेज होता है प्रिवेंटिव एंड रेस्टोरेटिव केयर, ठीक है। थर्ड फेज है एस्थेटिक ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो दिस इज फेज वन, इमरजेंसी केयर एंड पेन रिलीफ, ठीक है। Okay. यूजुअली अगर पेशेंट पेन में आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका पेन का ट्रीटमेंट पहले कंप्लीट करते हैं ना। ये तो नहीं कि हम उसको रिस्ट्रेशन करने लगे या कुछ उसको, कोई दांत है जिसका रूट कैनाल उसको पहले क्राउन दे, ये तो नहीं करेंगे ना हम। Yes, सबसे ma'am. पहले इमरजेंसी फेज हम यूज करते हैं ना, Yes, उसके ma'am. बाद हम प्रिवेंटिव रेस्टोरेशन फेज में आते हैं। होने के बाद फिर आपका आपका क्राउन फेज थर्ड होता है। इन द ट्रीटमेंट प्लानिंग विच फेज फोकस ऑन पे, ये हो गया, ओके। Which factors should be considered when planning dental treatment for a patient? Age and health status, patient preference, socioeconomic factor, all of the above. ठीक है? What is the role of AI-assisted diagnostic tool in modern dental diagnosis? What is the role of AI-assisted diagnostic tool in modern dental diagnosis? ठीक है, क्या होता है? नहीं, to enhance the accuracy of diagnostic images for early detection. Yes, ma'am. ठीक है, हम यहाँ ये तो नहीं चाहते ना कि हम क्लिनिशियन को क्लिनिशियन ही नहीं रहे कि खाली यही मशीन लगा दो और वो जाकर वो करे, नहीं ना। हम Yes, बेसिकली ma'am. क्या चाहते हैं कि उसका डायग्नोस्टिक जो भी है वो एक्यूरेट डायग्नोस हो, है ना। एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजेस फॉर अर्ली डिटेक्शन। Yes, ma'am. Which of the following is a key advantage of laser assisted periodontal therapy? लेजर असिस्टेड पेरिडोंटल थेरेपी का क्या एडवांटेज है? बेसिकली लेजर जब यूज करते हो तो क्या ब्लीडिंग कम होती है, हीलिंग फास्ट होती है ना। तो इट रिड्यूसेस डिस्कम्फर्ट एंड प्रमोट फास्टर हीलिंग। Yes, ma'am. When setting treatment objective, which of the following would be considered an immediate goal? Restoring aesthetic through smile design, restore full function of the teeth, alleviating pain and controlling infection is the first, ठीक है। C Yes, option. What does multidisciplinary treatment planning involve? Working only with, not A, not B. It's a collaboration with specialists from different dental fields. C. Which of the following advanced technique is commonly used in restorative dentistry to bond material to tooth structure? Bond material tooth structure, that is adhesive dentistry techniques. Okay. What is the role of digital imaging systems in modern dental diagnosis? फास्टर एंड क्लियर डायग्नोसिस विद रिड्यूस्ड रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। तो हम जो okay. आरवीजी वगैरह यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? एक तो तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, प्लस आपका एक्सपोजर टाइम काफी कम रहता Yes, ma'am. है ना। उसमें कितना रहता है, एडल्ट के लिए हम कितना यूज करते हैं टाइमर, अराउंड 0.26 है ना। और बच्चों में कितना यूज करते हैं, 0.06 सेकेंड्स की बात कर रही हूँ मैं, है ना, 1 सेकेंड भी नहीं पूरा, है Okay. ना। तो टाइम काफी कम रहता है उनमें। Which of the following is a primary concern during the aesthetic treatment phase of dental care? Is a primary concern during the aesthetic treatment phase of dental care. Improving the appearance of teeth. What is the primary purpose of conducting a differential diagnosis in dentistry? हम differential diagnosis क्यों करते हैं? To identify all possible condition with similar symptom and rule out the possibilities. ठीक है? In patient-centered treatment planning, which is essential to ensuring successful outcome. जब पेशेंट सेंटर्ड कर रहे हैं तो यूजुअली एंगेजिंग द पेशेंट इन शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, तो हम उसको शेयर करते हैं, हम उसे डिसीजन मेकिंग में हम उसे सारे ऑप्शन समझाते हैं ना कि रूट किनाल करने का क्या फायदा होगा, कि एक्सट्रैक्शन करने का क्या रहेगा, है ना। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, ताकि डिसीजन कौन लेता है, फाइनली पेशेंट ही लेता है ना, हम तो नहीं Yes, लेते ना। हमारा काम उनको समझाना होता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है इट इज टेकन बाय द पेशेंट, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। Which of the following is an important ethical consideration during treatment planning process?
ensuring patient autonomy and obtaining informed consent. Which of the following is the most critical element in comprehensive patient evaluation? Most critical and Complete medical and dental history. What is the main purpose of using diagnostic model in dental diagnosis? most of the patient evaluation. What is the main? To assist in treatment planning and simultation. ठीक है, हम डायग्नोस्टिक मॉडल्स बनाते हैं ना, क्यों? ताकि जब पेशेंट नहीं रहेगा उसके बाद भी हम देख सकें हैं। Planning estimation. Which of the following diagnostic test is used to assess the health of the tooth pulp? Pulp Pulp vitality. vitality, periapical full mouth X-ray cone beam slit, pulp vitality test. पल्प वाइटलिटी टेस्ट में क्या आता है रीडिंग, जब पल्प वाइटलिटी टेस्ट चेक करते हैं तो? No idea. ओके, अगर रीडिंग आपकी एडजेसेंट टूथ से है ना, मतलब उससे ज्यादा आती है, मतलब डिलेड रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, और एक होता है नो रेस्पॉन्स, डिलेड रेस्पॉन्स कर रहा है, नहीं एक होता है अर्ली None. रिस्पॉन्स, अर्ली रिस्पॉन्स कर देता है बहुत जल्दी, तो दैट इज इन्फ्लेमेशन एक्चुअली, है ना, और डिलेड या नॉन उस पर जाता है नो रिस्पॉन्स, Non-vital. नॉन वाइटल टाइप। आई टेल यू पल वाइटलिटी टेस्ट का रिस्पॉन्स। Yes, ma'am. Which factor is considered when selecting a restorative material for a patient? Aesthetic preference, the patient medical history, the functionality of the wrist, all of the above. ठीक है? Okay. Now, pulp vitality test assess the health status of the dental pulp. There are three main types: thermal test, electric pulp testing, and laser Doppler oxygen saturation test. इनमें तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? Laser Doppler वाला ma'am. यस, लेजर डॉपलर ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। नॉर्मल है, पहले नॉर्मल वाइटल पल्प रिस्पॉन्स, माइल्ड पेन रिस्पॉन्स, माइल्ड पेन दैट सबसाइड क्विकली आफ्टर स्टिमुलस रिमूवल, ठीक है, नॉर्मल होता है नॉर्मल पल्प, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? माइल्ड पेन होगा दैट सबसाइड क्विकली आफ्टर स्टिमुलस रिमूवल, ठीक है। रिवर्सिबल Okay. पल्पाइटिस में क्या होगा? शार्प पेन टू कोल्ड एंड स्वीट स्टिमुलाई दैट गोज अवे क्विकली, नो लिंगरिंग पेन, ठीक है। तो माइल्ड पेन में शार्प पेन होगा रिवर्सिबल पल्पाइटिस में, लेकिन जैसे ही आप स्टिमुलस हटाओगे पेन चला जाएगा। इरिवर्सिबल पल्पाइट में सीवियर प्रोलॉन्ग पेन स्पेशली टू कोल्ड और हीट, पेन लिंगर्स आफ्टर स्टिमुलस इज रिमूव्ड, रिवर्सिबल पल्पाइटिस। एंड नेक्रोटिक पल्प में नो रिस्पॉन्स टू कोल्ड, हीट और इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट इंडिकेट नॉन वाइटल पल्प। And hyperplastic pulpitis may usually seen in open carious lesion with chronic inflammation, minimal or no pain despite pulp exposure. ओके, अब मुझे क्वेश्चन याद आया इसी को देखकर। कई बार यूजुअली होता है ना कि जो पेशेंट को जो दर्द की हिस्ट्री होती है वो क्या देता है कि मैं जब ठंडा पानी पीता हूँ तो मुझे दर्द बढ़ जाता है, राइट? है ना ऋषि? Yes, ma'am. या Yes, गर्म ma'am. पानी से, गर्म चाय से गर्म से होता है तो हम बोलते हैं एब्सेस कंडीशन है। पानी अगर पानी से हो रहा है दर्द उसको, है ना, कि पानी पीने के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि इससे कि तुरंत मतलब पानी पीने के कई देर के बाद भी रहता है, दैट इज इरिवर्सिबल। और पानी पीने के थोड़ी देर बाद जल्दी खत्म हो जाता है या पानी पीने तक ही रहता है, तो रिवर्सिबल। अगर कोई पेशेंट ये हिस्ट्री देता है, ठीक है, कि मुझे रात भर बहुत दर्द हुआ, ठीक है, और जब तक मैं मुँह में पानी भर के रखता हूँ ठंडा, तो मुझे पेन नहीं होता, समझ रहे हो? और जैसे मैं Yes, पानी ma'am. रिमूव करता हूँ मुँह से, मुझे दर्द होने लगता है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? Ma'am, acute apical periodontitis. नो, पानी से उसे रिलीफ मिल रहा है। तुम समझ रहे हो? ठंडा पानी से उसको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जैसे ही पानी मुँह से निकालता है, मुँह से पानी निकाल के वो पीता है, तो उसको दर्द बढ़ने लगता है, बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज। Ma'am, ये देखो आपने पल्पल कभी, प्रेशर चेंज हो रहा है पानी की वजह से, वो तो मुझे समझ में आ रहा है।
हाँ, अब देखो इसमें क्या है, दिस इज अ गैंग्रीनस पल्पाइटिस। ठीक है, हमने पढ़ा था गैंग्रीनस ओरल पैथोलॉजी में। गैंग्रीनस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गैंग्रीन नहीं फॉर्म याद। हो जाता है कई केसेस में। क्या होता है कि पल्प इतना पेशेंट इतना इग्नोर कर देता है कि वहां पर गैंग्रीन फॉर्म हो गई, और गैंग्रीन की वजह से क्या होता है, गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके। ठीक है, तो वो उसके कारण उसको पेन होता है। लेकिन जब हम वाटर कंटेंट रखते हैं तो पेन चला जाता है। आई टेल यू, इसके डिस्क्रिप्शन में बताती हूँ आपको थोड़ा सा, है ना, मेरे दिमाग ओके। में आया इसमें। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। वी टू रॉट मल्टीपल पोटेंशियल का विच डायग्नोस्टिक मेथड ऑफन यूज टू असेस द प्रेजेंस ऑफ केरीज। X-rays and visual inspection. Okay. What is the significance of performing an extraoral intraoral examination to identify visible signs of disease and condition that may affect dental treatment? Okay, it has come. I'll tell you about. Okay. Gangrenous pulpitis. It is a form of irreversible pulpitis. Occurred when the pulp becomes necrotic and infected, producing gas and toxins inside the pulp chamber due to bacterial decomposition. वॉइस वॉइस पेन रिलीफ कोल्ड वाटर, द accumulation of gas, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, inside the pulp chamber increases intrapulpal pressure causing throbbing intense pain. When cold water is applied, it causes vasoconstriction and helps to contract gases, reducing the pressure and thereby relieving pain temporarily. It's a classic sign of necrotic pulp with closed apex, often seen in acute apical abscess or suppurative pulpitis. ठीक यस मैम। है ना, suppurative pulp. तो this relief is temporary, but definitive treatment is root canal or extraction is necessary. ठीक है, यस मैम। ओके, suppurative pulpitis बोलते हैं उसको। ओके, which imaging technique is most commonly used in dental practice to capture detailed 3D images of dental and jaw structures? CBCT. In treatment planning, which of the following is most relevant when managing periodontal disease, control of infection and inflammation? ठीक है, जब भी हम पेरियोडोंटल डिजीज कंट्रोल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले कभी भी ट्रीटमेंट करते हो ना, जैसे रूट कैनाल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहला जो आपका रहता है, पेशेंट का बैक्टीरियल काउंट कम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यू शुड परफॉर्म रूट कैनाल ट्रीटमेंट, बेटर रहता है कि आप उसे एडवाइस करो कि साथ में स्केलिंग भी वो करवाए, कि बैक्टीरियल काउंट जितना कम रहेगा पेशेंट के मुंह में, उतना उसका ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस भी अच्छा अच्छा। रहता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोमार्कर एंड जेनेटिक टेस्टिंग इन द डायग्नोस्टिक प्रोसेस? They help identify individual risk for condition like periodontal disease and caries. Okay. And which phase of treatment planning involves restoring function and aesthetic after emergency care and pain relief? Which phase फेज of treatment planning involves restoring? That is a ओके। phase टू। 2. Okay. What is the primary goal of performing a differential diagnosis in dental care? To identify similar symptom and narrow down the possibility. Which treatment approach should be prioritized for a patient with advanced periodontal disease? Periodontal therapy to manage infection and inflammation. What is the key advantage of integrating patient-specific treatment pathways into dental care? It allows for personalized care based on the patient unique needs and risk factors. Which of the following factor would be least relevant when considering a patient treatment plan? Patient gender. Which treatment modality would like to be included in phase 3 of treatment planning? एस्थेटिक रेस्टोरेशन लाइक Static restoration like crowns or veneer rehabilitation. What is the primary goal of restorative dentistry? Managing aesthetic appearance, replacing damaged decay to restore function and appearance. B. Okay. Which of the following is a common sign of diagnostic software in dentistry? Common use diagnostic software in dentistry, integrating diagnostic data to create personalized treatment pathways. Okay.
What role do advanced diagnostic imaging system play in dental treatment planning? They provide critical information for accurate diagnosis and treatment planning. Which of the following factor must be considered when determining the appropriate treatment for a patient with a medical condition like diabetes? The patient blood sugar level and control. Okay. Which of the factor must be considered when you for the patient level of dental anxiety? B option. Okay. Which of the following is true about team-based collaborative treatment planning in dentistry? It includes input from multiple specialists to address all aspects of a patient care. Which of the following is a key element in patient-centered care during treatment planning? Engaging the patient in the decision-making process to ensure that their preference and concerns are addressed. What is the purpose of post-treatment evaluation in dental care? To ensure that the treatment is successful and to address any complication or adjustment is needed. ठीक है? ओके, मॉडर्न डेवलपमेंट इन रिस्ट्रिक्टिव मटेरियल्स एंड प्रोसीजर्स, ये भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ना, जितनी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे उतना अच्छा है ऋषि। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो इशू मैम। नो ना, फाइन। Okay, restorative dentistry has undergone significant advancement over the last few decades. The constant pursuit of enhanced aesthetic durability and patient discomfort comfort has led to the development of innovative materials, cutting-edge techniques, and advanced dental tools. In this chapter, we'll explore the latest material and procedures that are revolutionizing restorative dentistry. A mind map is included at the end of this chapter. Okay, introduction. Okay, it focuses on the restoration of both function and aesthetics. ठीक है, यूजिंग मटेरियल्स एंड टेक्निक दैट क्लोजली मिमिक द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ। बेसिकली हम क्या कोशिश करते हैं, हम नेचुरल टीथ को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, मिमिक करने की कोशिश करते हैं कि क्लोज टू, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हम उसको रिस्टोर कर सके। ठीक है, कॉम्पोजिट रेजिन्स आए, कॉम्पोजिट रेजिन्स हैव बीन द मटेरियल ऑफ चॉइस। ठीक है, for aesthetic reason. Modern advancement have significantly improved their strength, durability, and aesthetic quality. The latest composite metal offers superior wear resistance, better color matching, and improved bonding. Then ceramics and zirconia restorations have come nowadays, very much used in nowadays. Exceptional fracture toughness बहुत ज़्यादा होती है इनकी हाई स्ट्रेस एरिया में। सुपीरियर एस्थेटिक क्वालिटीज होती हैं एंड बायोकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, लेकिन जो सामने के टीथ में होता है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा एस्थेटिक चाहिए होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? लिथियम सेरामिक। डाइसिलिकेट। तो ये किसमें आता है? जिरकोनियम एंड क्या बोलते हैं ऐसे रिस्ट्रेशंस को हम? विनियर्स। नहीं नहीं, एक होता है जिरकोनियम जो हम पीछे के रिस्ट्रेशंस करते हैं, और सामने के रिस्ट्रेशंस के लिए हम क्या वो टर्म यूज करते हैं इसमें? डाइसिलिकेट, लिथियम डाइसिलिकेट रिस्ट्रेशन। इनमें क्या होता है, एस्थेटिक ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ कम होती है इनकी। ठीक है, ये, अच्छा। हाँ, इसको मैं नाम भूल गई एकदम। कौन से क्राउन्स होते हैं? दैट इज अ डाइसिलिकेट, क्या, लिथियम डाइसिलिकेट क्राउन्स इन एंटीरियर्स। ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं जिरकोनियम से, है ना? क्या नाम होता है, मैं नाम भूल गई इसका नाम है। हाँ 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 हाँ, ओके, मुझे याद आएगा तो बताती हूँ। हाँ, ई मैक्स क्राउन ओके। ना, Emax crown. Emax is a brand name by Ivoclar Vivadent. It's made of lithium disilicate glass ceramic, known for excellent aesthetic, high translucency, and strength, making it ideal for anterior restoration. ठीक है, आइडियल anterior restoration में यूज करते हैं। जिरकोनियम है, हम posterior restorations में यूज करते हैं, एंड ईमैक्स क्राउन है वो हम एंटीरियर में यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पोर्सलेन फ्यूज मेटल क्राउन। ठीक है, अब पोर्सलेन फ्यूज मेटल क्राउन में भी हम क्या था, लेजर मेटल आता है यूजुअली, है ना, आजकल जो यूज कर रहे हैं। पहले जो अंदर का मेटल था इट इज मेड ऑफ निकल क्रोम। ठीक है, एंड लेजर जो मेटल होता है इट इज मेड ऑफ कोबाल्ट क्रोम। ठीक है, स्ट्रेंथ इज 8 टाइम्स देन द निकल क्रोम, कोई नो एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और क्या रहता है, इट इज कंपेटेबल विद द सीटी स्कैन एंड एमआरआई। Bioactive materials,
Bioactive materials are designed to interact with the tissues in the body, promoting healing and regeneration. These include bioactive glass, a material that simulates tooth remineralization and is used in restoration such as fillings and root and fillings. ठीक है. Calcium silicate cement used for pulp capping and root repair. These materials promote healing by encouraging the formation of dentin. Okay. ठीक है. A bioactive glass is important. ठीक है. Nowadays, I'll tell you bioactive glass. Okay. Okay, listen. Bioactive glass is a type of biocompatible material that interacts positively with biological tissues, especially bone and dentin. ठीक है? It's used in dentistry and medicine for regenerative purposes. Main components silicon dioxide, calcium oxide, sodium oxide, phosphorus pentoxide. When it contact with body fluids, bioactive glass releases ions. ठीक? Calcium phosphate silicate forms a hydroxycarbonate apatite. ठीक है? हाइड्रोक्सी कार्बोनेट एपेनाइट. ठीक है. लेयर सिमिलर टू नेचुरल बोन और डेंटिन, bonds chemically to bone or dentin, used in dentistry, in dentin remineralization, pulp capping, bone graft, root canal sealers, and desensitizing agent टूथपेस्ट. एग्जाम्पल नोवामिन. ठीक है. बायोग्रेन जो ये टूथपेस्ट में, इट्स वैल्यूड फॉर बीइंग ऑस्टियोकंडक्टिव, ऑस्टियोस्टिमुलेटिव एंड प्रमोटिंग टिश्यू रिपेयर. गॉट इट. Yes, ma'am. बायोएक्टिव ग्लास. हाँ, यहाँ पर Yes. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या फॉर्म करते हैं. फॉर्म से हाइड्रोक्सी कार्बोनेट एपेटाइट. ठीक है. हाइड्रोक्सी कार्बोनेट एपेटाइट लेयर सिमिलर टू द नेचुरल बोन एंड डेंटिन. ठीक है. तो ये ज्यादा मिमिक करते हैं नेचुरल को. और ये कौन से टूथपेस्ट में, नोवामिन हो गया, और कौन सा बताया इन्होंने, बायोग्रेन करके बताया, यूज इन बोन ग्राफ्टिंग. Okay. Ceramics and zirconium. Okay. So biocompatible lithium silicate. Okay. Porcelain fused metal. Okay. Now, minimal invasive dentistry, एयर एब्रेजन्स. ठीक है. एयर एब्रेजन, लेजर डेंटिस्ट्री. एयर एब्रेजन में हम क्या यूज करते हैं बेसिकली. हाँ. Remove the ear. काइनेटिक कैविटी Remove. प्रिपरेशन भी इसी में आता है. एयर एब्रेशन में क्या होता है बेसिकली, उसमें मतलब एक डिवाइस होता है जिसमें से काफी तेज स्ट्रीमलाइन एयर काफी तेज स्पीड से निकलती है. मतलब इसमें एल्यूमिनियम पार्टिकल्स यूज होते हैं जो कि आपके जो केरीज है उसको रिमूव कर देती है वहां से. ठीक है. एंड प्रिपेयर करती है. अब लेकिन इसमें क्या एडवांटेज है, एक तो कैविटी, एक तो डिस्कम्फर्ट नहीं होता, सेंसिटिव नहीं होता, और दूसरा कि ये आपका जो एयर एब्रेजन है बेसिकली मतलब आपकी मार्जिन्स अच्छी क्लीन होंगी, स्मूथ बनेगी, और आवाज नहीं करता, नॉइज, वो नॉइज नहीं प्रोड्यूस करता है. जैसे हम एरोटर चलाते हैं, एरोटर यूज करते तो नॉइज होता है ना. Yes, ma'am. एयर एब्रेजन में वो नॉइज नहीं रहता है बिल्कुल भी. ठीक है. तो इसको हम जो एक टर्म है काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन भी हम इसको बोलते हैं, तो इसमें स्पीडली पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एल्यूमिना के एयर एब्रेजन में. ठीक है ऋषि. Yes, ma'am. काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन इस किस में होता है, एयर एब्रेशन में होता है. Vibration. लेजर डेंटिस्ट्री में क्या होता है, इट रिमूव डीके शेप टिश्यू एंड क्योर डेंटल मटेरियल विद मिनिमम डिस्कम्फर्ट. ओजोन थेरेपी, ओजोन गैस इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग कैविटी एंड प्रिवेंटिंग डिके. अब ओजोन गैस आपको खाली नहीं मिलती है, ऑयल बेस्ड उसमें बनाकर डाल के देते हैं, है ना, ओजोन Yes. थेरेपी. तो ऑलिव ऑलिव ऑयल में यूज, ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स कर दी जाती है ओजोन गैस. तो जब भी आप जहां पर भी अप्लाई करते हो ना, जैसे कि आपने कैविटी प्रिपरेशन करने के बाद आप अप्लाई करते हो, तो एक तो स्टरलाइजेशन का काम करता है. ठीक है. प्लस आपका जो टूथ मटेरियल, जो आपका मटेरियल है, जो भी आप यूज करोगे रिस्टोरेशन पे, उसकी बॉन्डिंग को भी इंक्रीज कर देता है ओजोन थेरेपी. Okay. तो मैम ये किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, कैसे नहीं किया नहीं जाता है? बेटा, ये ना एक्चुअली आता है सिरिंज में, आते हैं ऑलरेडी ऑलरेडी भरे हुए आते हैं ऑयल के. ऑलिव ऑयल Okay. का सिरिंज आता है, उसके अंदर ये ओजोन पहले से डाला रहता है. Okay. ठीक है.
तो आप इसे जैसे डायरेक्टली सिरिंज से आप कैविटी में अप्लाई कर सकते हो, या थोड़ा सा आप किसी कॉटन या किसी बॉक्स पर निकाल के आप कैविटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे अगर आप इसको हीलिंग कराता है ओजोन बहुत अच्छी, तो आप जैसे स्केलिंग के बाद आप अगर आप इसको यूज करते हो तो पेशेंट को सेंसिटिव इशू एकदम खत्म हो जाता है, बिल्कुल क्या मतलब वो नहीं लगता है, ठीक है। ओके। और जैसे हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा वो है। और आप फिलिंग से पहले भी सब कॉम्पोजिट कर रहे हो, कॉम्पोजिट कई बार करने के बाद पेशेंट काफ़ी सेंसिटिव फ़ील करते हैं अपने आप को, है ना? हुँ, अगर आप ओज़ोन लगाकर आप फिलिंग करते हो, तो सेंसिटिव इश्यू एकदम हील हो खत्म जाते हो हैं। जाता है। मतलब आपने एचिंग की, ठीक है? हुँ, वर्नियर पे आप जब कंपोज़र से पहले आप ओज़ोन का एक लेयर लगा दो, ओज़ोन जो ऑयल आता है वो लगा दो और क्योर कर दो, ठीक है? उसके बाद आप कंपोज़िट यूज़ करोगे ना, तो आपको सेंसिटिव नहीं रहेगा कैविटी को। ओके। हुँ। और जैसे कि अगर आप सपोज़ करो आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सबसे पहले आप ओज़ोन अप्लाई करो केरीज़ रिमूव करने के बाद, ठीक है? फिर उसके बाद आप अप्लाई करो क्या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड अपना, ये जो भी आप कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यूज़ करते हो, कि आप क्या क्या बोलते हो डाइकेल यूज़ कर सकते हो, या बहुत से कैल्शियम जेल अलग से भी आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जीआईसी देते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आप कंपोज़िट यूज़ करते हो। यस मैम। CAD/CAM technique is basically have a revolutionary restrictive procedure. These hmm, technology enable precise design and fabrication of crown, inlays, onlays, bridges directly from the digital impressions. ठीक है? Faster turnaround time, restoration can be completed in a single visit. Higher accuracy, provide precise measurement, minimizing the risk of errors. Now, 3D printing in restorative dentistry. 3D printing has emerged as a groundbreaking technique in restorative dentistry, allowing for rapid prototyping of restoration, reducing the time and cost of manufacturing dental product. Custom-made dental appliances, from crown and bridges to orthodontic aligners. Material diversity 3D printing can use various materials such as resins, ceramics, metal to produce precise and functional restorations. Single visit dentistry, because of the this CAD/CAM technique and 3D printing, now single visit restorations have come in the use. Immediate restorations possible with no patient discomfort. Minimum chance of crown misfit is there. Cutting tools and chemicals in modern restorative dentistry, like diamond balls and rotary instruments we are using already, we know that. Enhanced diamond coating, low speed precision instrument, ergonomics design for better control and reduce hand fatigue during procedures. Endodontic and restorative this thing, but calcium hydroxide is there. ठीक है, pulp capping, it uses pulp capping, antimicrobial agent in root canal treatment, ethanol based cement, bonding agents, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड एंड पॉलीएथर impression materials. Modern impression material include polyethylene hydrocolloid, offer superior accuracy, ease of use, and fast setting time. These materials are essential in obtaining precise impression for crown, bridges, and implant. Biocompatible and patient-centered restorative cares. Biocompatible metals, titanium, non-toxic bonding agents are used to minimize risk of tissue irritation. Okay, we'll go through the questions. We'll see. ओके, अभी अभी नाउ डेज रोबोटिक सर्जरीज भी आ गए हैं ना। तो भोपाल में डॉक्टर प्रिया भावे शी स्टार्टेड विद रोबोटिक सर्जरी, है ना। तो रोबोटिक सर्जरी में शी इज नॉट इनसाइड द ओटी, ओके, बट शी इज आउटसाइड द ओटी एंड शी कैन कंट्रोल एंड शी कैन सी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो रोबोट्स आर डूइंग सर्जरी एक्चुअली, एंड यू ओके। कैन कंट्रोल देम, एंड इट्स अ गुड थिंग कि जब आएगा तो आप कहीं से बैठ के प्रोसीजर्स कर सकते हो। Which of the following is an advanced material used for dental restorations known for its strength and aesthetic property? कंपोजिट Composite रेज़िन, resins. Which material is considered ideal for posterior crown due to its high strength and aesthetic value? ज़िरकोनिया, No, zirconia. Okay. They have given which material considered ideal for posterior crowns. Posterior crowns के लिए zirconia. Okay. Which technology allows for the design and fabrication of dental restoration directly from digital impression? CAD/CAM technology. What is the main advantage of bioactive material in restorative dentistry? They stimulate remineralization and tissue healing. Which of the following is a bioactive material used for root and filling and pulp capping?
Calcium silicate cement. What is the primary function of dental adhesive in modern restorative dentistry? In modern restorative to bond restorative material to tooth structure. Which material is commonly used in aesthetic restoration due to its ability to mimic natural tooth color and translucency? Porcelain. Which is one significant advantage of minimal invasive dentistry? Significant advantage of hello, Rushi? Hello? Is it disconnected? Hello? Damn. Mm-hmm. Disconnect. Hello? यस मैम। Okay, okay, you are here, na? Only. मैम मुझे वो लगा एक्चुअली बैटरी डाउन हो गया था इसलिए। ओके ओके मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ओके which is one significant advantage of minimally invasive dentistry preservation of healthy tooth structure. Okay. Which technique uses laser to remove tooth decay without the need for traditional drilling? लेजर डेंटिस्ट। Okay. Which of the following is a major benefit of CAD/CAM technology in restorative dentistry? Faster restoration fabrication, fewer visits. Which of the following material commonly used dental implant due to titanium? तो सिंपल क्वेश्चन है काफी कुछ भी ऐसा नहीं इसमें टू इंडस्ट्रियल डेंटिस्ट्री व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एयर एब्रेशन टेक्नोलॉजी मैम टू ये रिमूव क्वेश्चन मैं कर लूंगी। कर लोगे ना वो ये तो बहुत सिंपल हम्म। क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसा यस कुछ है मैम। नहीं है हाँ ना अगर कुछ डिफिकल्टी होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी मैम। है ना हाँ आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जस्ट आई गो थ्रू एक ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जस्ट वी which laser wavelength is commonly used in dental procedure for hard tissue such as caries removal which laser wavelength is used commonly used in dental procedures ये जैसे एर्नियम याट्रिन येट्रियम गार्नेट लेजर इसका एक बार फुल फॉर्म चेक करना और ये है और इसमें थर्मोप्लास्टिक विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल यूज टू क्रिएट कस्टम फिटेड ऑर्थोडोंटिक अलाइनर्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ओके आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे क्या यस मैम। अभी उसमें से कोई क्वेश्चन लगा जो आपको अभी एक तो आई थिंक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक तो इंस्ट्रूमेंट के एंगल्स पर भी आए हुए हैं ना बर्स के यस मैम रेक एंगल पे क्वेश्चन हाँ है। रेक हाँ रेक एंगल पर क्वेश्चंस है यू नो वो दैट वी हैव टू कवर ठीक है और इसके अलावा मैम और एंडो से है ज्यादा क्वेश्चंस तो। एंडो से ज्यादा क्वेश्चंस है इसमें से और कोई क्वेश्चन आया है आई थिंक मैम एक एमटीए का पीएच पूछा था उन्होंने। ओके कितना होता है 12 12.5 हाँ। ओके और इसके अलावा एमटी हो गया हम्म इसके अलावा एंडो के ही क्वेश्चंस याद है मुझे एक बार। और एंडो मैम की वो याद ओरोमर का फुल फॉर्म पूछा है डाइकॉम का फुल फॉर्म पूछा है। ओके डाइकॉम हाँ और डाइकॉम ऑर्मोसर्स ऑर्मोसर्स हाँ ऑर्मोसस हाँ। है ना ऑर्मोसर्स ओके और क्या पूछे मैम फिलहाल तो अभी यही याद आ रहा है मुझे। बाकी एंडो के क्वेश्चन थे जैसे हॉट टूथ क्या होता है। हॉट टूथ हाँ हॉट टूथ क्या होता है आपको पता है ना हाँ जिसको एनेस्थेसाइज नहीं कर पाते नहीं? हम लोग हाँ मतलब। नहीं कर पाते हैं ना बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन तो ऐसे टूथ में आपको कौन सा एलए यूज करना चाहिए अ, मैम इंट्रा बोन बोन में देते हैं ना उसमें। ऐसे केस में आर्टिकेन यूज करते हैं बेटा है ना आर्टिकेन ओके। है ना आर्टिकेन इज यूजफुल इन सच कंडीशंस ठीक है ओके। और डाइकॉम स्टैंड फॉर डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन ठीक है तो बेसिकली आपका सीबीसीटी से रिलेटेड है डाइकॉम ठीक है ओके। सीटी स्कैन एमआरआई एक्सरे सीबीसीटी है ना इट इज अ डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन मेडिसिन ठीक है
3D प्लांट प्लानिंग ऑर्थोडोंटी एंडोडोंटी इसमें, ठीक है। ऑर्मोसर्स इज ऑर्गेनिकली मॉडिफाइड सिरामिक्स, a type of advanced dental restorative material that combine the property of ceramics and polymers, organically modified ceramic, ठीक है। यस मैम। ओके, लो पॉलीमराइजेशन के, गुड बायोकम्प्यूटर, इंप्रूव वेयर रेजिस्टेंट, गुड एस्थेटिक, लो वाटर ऑप्शन। इसमें एग्जाम्पल एडमिरा फ्यूजन, ठीक है। तो ये है ऑर्मोसर्स इज ऑर्गेनिकली मॉडिफाइड सिरामिक्स। और एक मैम वो भी था, सैंडविच टेक्निक भी पूछी थी। सैंडविच टेक्निक तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी, कंपोजिट की आई हाँ, थी। हाँ, तो कंपोजिट में हम जो नीचे जो यूज करते हैं ना जीआईसी, यस तो मैम। दैट इज अ सैंडविच टेक्निक, यस जीआईसी, मैम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और और कोई क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा हो? अभी तो यही याद आ रहा है, बाकी क्वेश्चन पेपर में और देख लूंगी मैम, अभी ऐसा ऐसे याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, एक मिनट, आई जस्ट सी कि मैंने लिखा था क्या क्वेश्चन, क्योंकि इतना फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है कंजर्वेटिव में, ठीक है। तो विल फिनिश बाय टुमारो, है ना, उसको एंडो ले लेंगे जल्दी से, यस मैम। है ना। ओके, आई जस्ट सी इसमें, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं हैं इन्होंने। यस मैम, और तो वो उसमें नहीं है क्वेश्चंस, तो मुझे भी नहीं दिख हाँ रहे। हाँ, ओके। मैम एक ये क्वेश्चन था ऑपरेटिव का, ये पिट एंड फिशर के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? द रिक्विजिट ऑफ एन एफिशिएंट पिट एंड फिशर सीलेंट ऑल आर हाँ, बट वन। वो था कि मतलब एक तो प्रोलॉन्ग क्यूरिंग टाइम नहीं होना चाहिए उसका। क्या लो, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू वियर होना चाहिए, क्रियोस्टेटिक यस, एक्शन होना चाहिए, हाँ, ठीक है बट ना। क्यूरिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। हाँ, लास्ट ऑप्शन, ओके। यस मैम। ओके, ओके, बस इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो एक हम इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के एंगल्स थोड़ा सा हम कवर करेंगे कल, वो भी हम देख लेंगे। और यस मैम। एक डेंटल एक्सिलरी से एक क्वेश्चन आया था जो हमने, मैं आई जस्ट टेल यू, उसमें आज मेरा ध्यान गया वहाँ पर। आई टेल यू अबाउट दिस कि इज नॉट द फंक्शन ऑफ दिस यस थिंग। मैम, कैविटी प्रिपरेशन नहीं करेंगे वो। हाँ हाँ हाँ, हम्म। कैविटी प्रिपरेशन नहीं करते, दैट इज है ना, वो डेंटल ऑक्सिलरी से था। और कौन सा क्वेश्चन था जो कि मुझे लगता है कि हम्म, ठीक है ना। एक ना हम ना पूरा क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा रखते हैं किसी दिन की, उनको हम करें, कंप्लीट करें क्वेश्चन पेपर भी साथ में, एक एक करके, एक एक संडे एक एक क्वेश्चन पेपर पकड़े, पूरा थॉरो पेपर कवर करें। हाँ तो व्हाट डू मैम, यू ये से? पिछले पेपर से मतलब आप कुछ रिपीट होने के चांसेस तो वैसे कम ही होंगे ना मैम। लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं बेटा, हाँ। तुम समझ रहे हो, वो सेम यस मैम। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके। हाँ, जैसे वो उसके मतलब होता है कि फेवरेट टॉपिक्स हो गए या जो भी हो गया, अब सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके मैम। हम्म, तो हमें उससे एक आइडिया मिल जाता है कौन कौन सा टॉपिक है, और जब टॉपिक जब कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी दिमाग में आता है वो कवर करना है। यस मैम। ठीक है, चलो, ओके, चलो, लेट्स फिनिश द क्लास, ठीक है। एक बार आप गो चलो। थ्रू करना, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ इट शुड बी डिस्कस्ड, प्लीज लेट मी नो, है ना। बिल्कुल मैम। है ना, कल हम विल फिनिश दिस कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री क्लास, कोई ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको, जितना टाइम बचेगा फिर बाकी चीज़ में यूज़ करते हैं उसको, है ना। यस चलो, मैम। ओके, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट, बाय बाय।
ले जाती हूँ उसको।